Here you see the orbital velocity. It means here you see this velocity से एक सैटेलाइट अर्थ का चक्कर करता है, that is known as the orbital velocity. The minimum, note down, the minimum required velocity with which a satellite revolves around the earth, the minimum required velocity with which a satellite revolves around the earth is known as the orbital velocity. Revolves around the earth is known as the orbital velocity. Minimum required velocity with which a satellite revolves around the earth is known as the orbital velocity. उसे हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं. हमने बताया कि जब किसी चीज को escape velocity से फेंक दिया जाए, if it is projected with the escape velocity that escape the gravitational field and never return toward the surface, that was escape velocity. But here the minimum velocity, this minimum velocity से कोई सैटेलाइट वह एक रिक्वायर्ड वेलोसिटी होती है, हरदम वो चक्कर नहीं करेगा. हम देखते हैं एक बार फेंक देते हैं यहाँ गिरेगा, दूसरी बार फेंक देते यहाँ गिरेगा, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार और कहीं गिरेगा. लेकिन अगर हमें इतनी स्पीड दे दें जनरल वेलोसिटी किसी हाइट से कि वह कभी न गिरे, चलता रहे लगातार, इसे ही हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं. यह एक मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी होती है. Here we will calculate what is the orbital velocity. ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम कैलकुलेट करेंगे, इसका डेरिवेशन देखेंगे. Here orbital velocity, when here you have the earth and the radius. मान लेते हैं अर्थ के सरफेस से r डिस्टेंस पर अगर एक सैटेलाइट है that revolves with orbital velocity v naught. v को हम orbital velocity कहेंगे. और is the orbital radius. हमेशा ध्यान में रखना कि सेंटर से ही हम रेडियस को हमेशा कंसीडर करते हैं ओ से. ये हमारे पास सैटेलाइट है that revolves around the earth. अर्थ का मास m है, सैटेलाइट का मास स्मॉल m है. तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट, बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट, it is equal to gmm upon r square. gmm upon r square. Force of gravitation provides the necessary centripetal force. Force of gravitation provides necessary centripetal force. Provides necessary centripetal force. एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है जो बाउंड कर देता है सेंट्रीपिटल फोर्स की, वो उसी का चक्कर करने के लिए विवश होता है. दैट इज देयरफॉर सेंट्रीपिटल फोर्स F is equal to how much? m v naught square upon r. And therefore the force of centripetal force is equal to the gravitational force gmm upon r square. This r cancel out, m cancel out, so v naught is equal to root gm upon r. Root gm upon r. Here, basically r is the radius of earth.
सरफेस से h हाइट पर है, तो स्मॉल r इज इक्वल टू r प्लस h. So we can write as r is equal to r plus h, or v naught it is equal to gm upon r plus h. gm is equal to, we know that g is equal to gm upon r square, so gm is equal to gr square. So v naught it is equal to gr square upon r plus h. So it is v naught, here r take out common, तो हमारे पास r रूट g अपॉन r प्लस h, ये हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया. v naught is equal to r रूट g upon r plus h. When satellite is close to earth, ध्यान में रखना, when satellite, हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गई, but when satellite is close to earth, when satellite is close to earth, when satellite is close to earth, then h is equal to 0. अब 1600 किलोमीटर है हमारी हाइट, और पता लगा 100 किलोमीटर पर अगर हमें करना है, तो 100 किलोमीटर पर अगर हाइट पर अगर सैटेलाइट को सेट करना है, तो एच लगभग नेग्लिजिबल होगा. एच हमारा अगर ऐड हो वह हाइट किसी रेडियस में, तो उसके रेस्पेक्ट में वह नेग्लिजिबल हाइट मानते हैं. 10-20-50 किलोमीटर ऐड किया जाए तो वह इट इज, तो उसका कोई मतलब नहीं हुआ. 6400 किलोमीटर क्लोज टू अर्थ, तो when it is close to earth, so h is equal to 0, and therefore v naught is equal to r root g upon r plus 0. So v naught it is equal to r root g upon r, इसको लिख सकते हैं रूट जी आर. तो हमारे पास v naught it is equal to रूट जी आर, ये हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गई. और अगर हम रेडियस ऑफ अर्थ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कैलकुलेट करते हैं, तो ये वेलोसिटी हमारी ऑर्बिटल आती है 7.292 किलोमीटर पर सेकेंड. 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड. स्केप करने के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड चाहिए, लेकिन अर्थ का चक्कर करने के लिए 1 सेकंड में लगभग 8 किलोमीटर अगर फेंका जाए, तब वह गिरेगा नहीं जमीन पर, वह लगातार चलता रहेगा. और इसे हम ऑर्बिटल, यही हमारी रिक्वायर्ड मिनिमम वेलोसिटी है टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. अर्थ का चक्कर करने के लिए इतनी स्पीड मिनिमम चाहिए कि जिससे वह जमीन पे न गिरे. 8 किलोमीटर लगभग चलना चाहिए, 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड. इतनी स्पीड से फेंकेंगे तो कभी जमीन पे नहीं गिरेगा. तो ये हमारा है ऑर्बिटल वेलोसिटी. अब हमें टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट, अच्छा ये रिलेशन हो रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन द एस्केप वेलोसिटी एंड द ऑर्बिटल वेलोसिटी. रिलेशन बिटवीन द एस्केप वेलोसिटी एंड द ऑर्बिटल वेलोसिटी. The relation between escape velocity को v से डिनोट करते हैं एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी को v0 से. Relation between v and v0. We know that the escape velocity ve it is root 2gr and orbital velocity is equal to root gr. Then calculate
रूट 2 g r और ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा रूट जी आर, देयरफॉर v अपॉन vo इट इज इक्वल टू रूट 2 जी आर अपॉन रूट जी आर इट इज रूट 2। इसका मतलब v इज इक्वल टू रूट 2 v नॉट। इट मीन्स इसके वेलोसिटी इज रूट 2 टाइम्स द ऑर्बिटल वेलोसिटी। मतलब इसके वेलोसिटी में अगर रूट 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो जो वेलोसिटी जनरेट होगी दैट विल बी कैपेबल टू एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब रूट 2 टाइम्स अगर वेलोसिटी अगर और गेन कर ले ऑर्बिटल वेलोसिटी तो अर्थ के सराउंडिंग को छोड़ करके वो ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाएगा। यही रिलेशन है कि इतना जरूरत पड़ती है रूट 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए। So this is the relation between the escape velocity and the orbital velocity. Now, periodic time of the satellite, periodic time of satellite, time period of satellite is something. Time period, आवाज एकदम नहीं, time period of satellite टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। अब देखो सैटेलाइट का टाइम पीरियड होता क्या है। अगर एक सैटेलाइट है v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ऑर्बिटल रेडियस सेंटर से लिया जाता है, ऑर्बिटल रेडियस इट इज इक्वल टू 2 पाई r, ऑर्बिटल वेलोसिटी v नॉट, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होगा, एक चक्कर करने में कितना समय लगेगा, 2 पाई r अपॉन v नॉट। इज इट क्लियर टू ऑल? टाइम पीरियड इट इज इक्वल टू पूरा टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, सर्कमफेरेंस 2 पाई r अपॉन वेलोसिटी कितनी हुई v नॉट। तो वी नो दैट v नॉट इट इज इक्वल टू रूट gm अपॉन r, इसके पहले लिखे हुए हैं, तो वी विल पुट हियर 2 पाई r अपॉन रूट gm अपॉन r, और r को ऊपर ले जाएं तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 2 पाई r की पावर 3/2 अपॉन रूट gm। हम ये भी लिख सकते हैं 2 पाई r क्यूब अपॉन gm। ये बात समझ में आ रही। नाउ ये हमारे पास r की पावर हाफ है, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो r इंटू r की पावर हाफ 3/2 होगा 1 प्लस हाफ, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। और r इज इक्वल टू r प्लस h, ध्यान रखना r इज इक्वल टू r प्लस h, तो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट r प्लस h का होल क्यूब अपॉन gm। एंड वी नो दैट, ये भी ध्यान में रखना कि g इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर, so gm इज इक्वल टू gr स्क्वायर एंड देयरफॉर t इज इक्वल टू 2 पाई r प्लस h का होल क्यूब अपॉन gr स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास एक रिलेशन मिल जाता है 2 पाई रूट r प्लस h का होल क्यूब अपॉन gr स्क्वायर। When satellite is close to Earth, when satellite is close to Earth, then what will happen, h is equal to 0, तब हमारे पास पीरियोडिक टाइम p is equal to how much, देखो जरा 2 पाई रूट r क्यूब अपॉन gr स्क्वायर, t is equal to 2 पाई रूट r अपॉन g।
और अगर हम रेडियस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पुट करते हैं, इट कम्स आउट टू बी 84.6 मिनट। मतलब लगभग 1.5 घंटे में अर्थ का एक चक्कर कर लेता हूँ। ठीक है, इतने 1.5 घंटे 90 मिनट के लगभग 1.5 घंटे में अर्थ का एक चक्कर कर लेता है व्हेन इट इज क्लोज टू अर्थ। इतनी स्पीड से 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड चलेगा तो समय कितना लगेगा? 84.6 मिनट। ये ध्यान में रखना। तो ये वैल्यू हमारा होता है पीरियडिक टाइम। और हम देख रहे हैं कि पीरियडिक टाइम डिपेंड्स अपॉन, ये हमारे पास द रेडियस, ये हमारा जो पीरियडिक टाइम है सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करता। देख रहे हो, सैटेलाइट का मास से इंडिपेंडेंट होता है, यह अर्थ के मास पर डिपेंड करता है। ऑर्बिटल रेडियस पे डिपेंड करता है, जितना दूर पे होगा उतना ही इसका टाइम अधिक होगा। लार्जर द डिस्टेंस लार्जर विल बी द टाइम। इसी तरह से हमने देखा कि ऑर्बिटल वेलोसिटी रूट जी आर, ये भी सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं कर सकता, और इट इज आल्सो इंडिपेंडेंट अपॉन द सराउंडिंग्स एटमॉस्फेयर। ये किसी मीडियम पे भी डिपेंड नहीं करता। हमारे देखा कि रूट जी आर है, तो इसका मतलब मास सैटेलाइट का कुछ भी हो, that only depends its velocity, and the periodic time only depends upon the mass of the earth। अर्थ के मास पर, उस पर अर्थ का मास जो होगा उसी अनुसार उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड द नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स। तो ये चीज हमारे पास है। अब हम एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, इन सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट? Energy of satellite, we can write here total energy of satellite, देख सकते हैं total energy of satellite, total energy of satellite। एक सैटेलाइट जो रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ, what will be its total energy? Here you see, so when the satellite revolves, here you have the earth and orbital radius, it is smaller. Satellite revolves around the earth, its orbital velocity is v naught। Orbital velocity is v naught, mass of earth m, mass of satellite it is small m, and satellite revolves around the earth, its gravitational potential energy at a distance r from the center of earth, gravitational potential energy u, it is minus gmm upon r। It is known as the gravitational potential energy। ध्यान रखना, ये potential energy u it is equal to, कल डिराइव किए थे, it is equal to minus gmm upon r, gravitational potential energy। Kinetics, since the satellite revolves with orbital velocity v naught, so its kinetic energy Ke is equal to half m v naught square, and here you have half m v naught. What was v naught? We have done, it is gm upon r, root
gm upon r. So b square is equal to हमारे पास gm upon r. So स्क्वायर हो जाएगा तो gm अपॉन 2r. इज इट क्लियर? ये रूट है ना, उसका होल स्क्वायर कर लेंगे. Therefore you have here the kinetic energy. Therefore total energy of the satellite, total energy of satellite कैसे दिखेगा? Total energy of satellite, total energy of satellite, total energy of satellite potential energy plus kinetic energy, it is equal to, देखो, total energy potential energy plus kinetic energy minus gm upon r plus gm upon 2r, it is equal to minus gm upon 2r. It is total energy. Total energy of the satellite is negative. Note down. Total energy is equal to minus gm upon 2r. ये हमारा हो गया टोटल एनर्जी. You will write that the total energy of the satellite is negative. Note down, the total energy of the satellite is negative. This implies that the satellite is bound to revolve around the earth. Total energy of the satellite is negative. This implies that satellite is bound to revolve, bound B-O-U-N-D, bound to revolve around the earth. इसकी एनर्जी निगेटिव है, कम है, इसीलिए वह अर्थ का चक्कर करता है. इसकी एनर्जी केवल पॉजिटिव हो जाए. पॉजिटिव एनर्जी कहाँ होती है? इन्फिनिटी पे. तो इट विल लीव द ऑर्बिट. तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाय द सैटेलाइट टू लीव द ऑर्बिट. तो अब हम लिखेंगे बाइंडिंग एनर्जी पढ़ेंगे. बाइंडिंग एनर्जी देखो, ये तो पता लग गया कि हमारे पास टोटल एनर्जी इसकी निगेटिव है, और हम लोग बाइंडिंग एनर्जी पढ़ेंगे. तो ये देख लेना. अच्छा, इसमें देख लेना काइनेटिक एनर्जी हमारे पास gm अपॉन 2r, पोटेंशियल एनर्जी माइनस gm अपॉन r है, टोटल एनर्जी माइनस gm अपॉन 2r हो गया. तो अब हम कर क्या सकते हैं? कभी कोई पूछता है कि टोटल एनर्जी दिया हुआ व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी देख लेना. टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी केवल इतना अंतर है कि वो निगेटिव है, दिस इज पॉजिटिव. So we write it is minus total energy. बस टोटल एनर्जी अगर दिया हुआ हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेंगे हम? माइनस ऑफ टोटल एनर्जी. और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी जरा देखना, माइनस gm अपॉन r. इसका मतलब ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी. ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें वी विल फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, और टोटल एनर्जी में अगर केवल माइनस का मल्टीप्लाई कर दें दैट विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी. तो ये भी एक रिलेशन हमें डेवलप हो गया है यहाँ से. अब हम पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट.
बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, इसको लिखेंगे बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। बाइंडिंग एनर्जी किस एनर्जी के कारण सैटेलाइट बंधा हुआ है, चक्कर करने के लिए विवश है। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द सैटेलाइट टू लीव द ऑर्बिट एंड एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड इज नोन एज द बाइंडिंग एनर्जी। नोट डाउन द minimum energy required by the satellite, the minimum energy required by the satellite to leave the orbit, and escape the gravitational field and escape, escape the gravitational field is known as the binding energy of the satellite. Since the total energy is equal to minus gmm upon 2r, if gmm upon 2r energy is given to satellite, then total energy it is equal to minus gmm upon 2r plus gmm upon 2r, it is equal to 0. That is total energy 0 कहाँ पे होती है, that is at the infinity। और सैटेलाइट फिर और इतनी एनर्जी अगर प्रोवाइड कर दिया जाए तो सैटेलाइट ऑर्बिट छोड़ करके इन्फिनिटी पर चला जाएगा। तो जब टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस gmm अपॉन 2r प्लस gmm अपॉन 2r, टोटल एनर्जी 0, टोटल एनर्जी लाइज एट इन्फिनिटी। सैटेलाइट अर्थ की ऑर्बिट को छोड़ करके इन्फिनिटी पर चला जाएगा। मतलब therefore the binding energy of satellite, it is equal to प्लस इसको कहते हैं प्लस gmm अपॉन 2r प्लस gmm अपॉन 2r। जितनी निगेटिव एनर्जी है दैट एनर्जी प्रोवाइडेड टू द सैटेलाइट, वही एनर्जी अगर सैटेलाइट को प्रोवाइड कर दिया जाए तो वही हमारी बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी हुई, प्लस gmm अपॉन 2r। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट दो तरह के होते हैं, एक होता है ये जो है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी जिसे कहते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। एक होता है पोलर सैटेलाइट। अर्थ में दो तरह के सैटेलाइट होते हैं, एक अर्थ का इक्वेटोरियल प्लेन में चक्कर करता है, इसे हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसका पीरियाडिक टाइम उतना ही होता है जितना कि अर्थ 24 घंटे में एक चक्कर करती है। तो पीरियाडिक टाइम ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इट इज इक्वल टू 24 आवर। अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सो द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आल्सो रोटेट्स, revolves from west to east. As a result, since both the periodic time remain the same, so speed also remain the same, angular velocity. As a result, that appears stationary with respect to the observer which lies on the surface of Earth.
अर्थ के सरफेस से देखा जाता है तो हमेशा स्टेशनरी दिखता है, बट दैट ऑलवेज, क्योंकि जितनी स्पीड हमारी अर्थ की है वही स्पीड उसकी होती, 24 आवर में चक्कर करता है। तो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एंड द पोलर सैटेलाइट। तो पोलर सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी इसको आप हाँ अगले में ही पढ़ पाएंगे, क्योंकि अभी 5 मिनट बचा है तो ठीक से हो नहीं पाएगा।